हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट होता है एमए एंट्रेंस के लिए होती है, तो वो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर का मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग यदि यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माय नेट साइकोलॉजी channel, which including in your net in my net channel you will get more contents related to psychology. uh, Basically, we are focusing on UGC NET exam, GATE exams, and another type of like MA entrance exams and all type of entrance exam. So you can get benefit if you are following my channel, and if you also send to your group of friends, those who are really needed for this kind of question discussions with solutions. In future also we will keep making more all type of question papers related to psychology, any competitive exams. So let me think about, we will move into the further questions like 35, question number 35 of the following which is not basic test. So there is a क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, चार क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट बेसिक टेस्ट. सो देर इज ऑप्शंस written like sweet, salty, peppery, and bitter. So you know that we are all know that the basic taste here, sweet is the basic taste, and salty is the basic taste, and bitter is the basic taste. We know that in our day-to-day life we use this word sweet, salty, and bitter. But peppery is quite different from other all other three. So we can say easily with confidence. So our answer could be the pepper is the right answer. So next we will move into uh, you know next question. The functional fixedness could be explained as failing to use like failing to use as a screwdriver when you have lost your screwdriver. So here, uh, not being able to solve physics problem because you apply the same rule you always do. Use a bracket as pillow. Adding water to a cake mix when it call for milk. So here a functional fixedness means we have certain kind of problem solving techniques which are already in our mind, and we keep applying to the new upcoming problems also. So our mind, the word itself tells we are uh, function in the such a manner in we are not flexible to adopt the new problems. So here the B one is shoots actually. So not being able to solve physics problem because you apply the same rule. So here same rule means your functional fixedness. So B is the right answer. So it is B is the right answer. So then we will move into further question. Which of the following sense organ is highly developed, most complex and important sense in human being? सो ऑब्वियसली हम लोग को पता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंस ऑर्गन होती है हमारा विजन होती है. तो विजन इज़ द सबसे सॉफिस्टिकेटेड है और कंपेयर टू द ऑडिशन. नेक्स्ट आती है ऑडिशन, उसके बाद अलग सेंसस वगैरह होता है. So obviously vision is the one of the most sophisticated sensory type है. तो हम लोग इसको कंफर्टेबली जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है, विजन्स रहेगा फ्रेंड्स. सो विजन्स हमारा आंसर है. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं. तो कैसे हम लोग कर सकते हैं देखते हैं अभी. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू डेना Bumurind, which parental styles results in most socially competent and responsible adults. So इसमें जो पेरेंटिंग के बारे में उन्होंने पूछ रहा है, जो बोमरिंड जो है
वो कैटेगराइज किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, उसमें अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, सो ये सारे कैटेगरीज आते हैं। तो उसमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस इस कंटेक्स्ट में जो पूछ रहा है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अथॉरिटेटिव लग रहा है। तो अथॉरिटेटिव इसलिए क्योंकि अथॉरिटेरियन तो बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करते हैं बच्चों के ऊपर, बट अथॉरिटेटिव जो होता है वो परमिसिव भी जैसे भी नहीं होता। जो अथॉरिटेटिव में बच्चों को एक रेगुलेट करने की मौका मिल जाती है, इन्वॉल्व भी होते वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है हमारा अथॉरिटेटिव ठीक लगता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डैश इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली अकॉर्डिंग टू द वे इन विच इस रेस्पॉन्सेस अफेक्ट द स्टिमुली। तो ये हमारा ऐसा पूछ रहा है कि एक प्रोसेस है विच द लर्नर रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली अकॉर्डिंग टू द वे इन विच ही रेस्पॉन्सेस अफेक्ट द स्टिमुली। तो ये क्लासिकल कंडीशन के एग्जांपल है। हम लोग को अगर एक्सपेरिमेंट को ध्यान में देख ले तो किस तरह से हम लोग लर्नर रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली अकॉर्डिंग टू द वे विच इज रेस्पॉन्सेस अफेक्ट द स्टिमुली। तो अफेक्ट द स्टिमुली को रेस्पॉन्ड, जैसे डॉगी के एक्सपेरिमेंट में अब अगर आपने थोड़ा ध्यान कर लिया तो इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग की आंसर होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम डाइवर्जेंट थिंकर्स आर मोर लाइकली टू process information to arrive single best answer, think creatively and generate multiple answers, problem solve in systematic step by step and frequently suffer from functional fixedness। तो ये सारे चीज़ में से हमको ठीक लग रहा है जो है थिंक क्रिएटिवली एंड जनरेट मल्टीपल आंसर्स। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या है, एक आंसर को मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को मल्टीपल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन बोलते हैं हम लोग। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऐसा आंसर सोचने के लिए यूनिक आंसर को, मल्टीपल आंसर को सोल्यूशंस निकालते हैं वो लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर। हम लोग अभी इनको फाइंड आउट किया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा इसका आंसर। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी रीइंफोर्सर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी रीइंफोर्सर का एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, उसमें हमको प्राइमरी और सेकेंडरी करना है। देखिए प्राइमरी तो अब देखने से पता लगता है, फूड जो होता है, वाटर जो होता है और सेक्स जो होता है, ये तीनों हमारे लिए प्राइमरी है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है कहीं ना कहीं तो ये तीनों को सबसे मेजर मानता है कंपेयर टू मनी। तो इवन अगर आपने देखो कि कुछ लोग जो वर्ल्ड प्री हिस्टोरिक लोग रहते थे वहाँ पे पैसे का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन फूड वाटर सेक्स तो कर ही लेते थे उस टाइम में। अभी इस तरह से देखें तो हमारा क्या रहेगा आंसर, हमारा रहेगा मनी। मनी इज़ द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होंगे। तो आप याद रख सकते हो मनी इज़ द सेकेंडरी रीइंफोर्सर। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बेस्ड ऑन द कोलबर्ग मॉरलिटी। तो इसमें राज एक्सप्लेन्स टू हिज सन दैट द स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर पर आवर। He tells him to stay under the speed limit when driving because it is law and will probably prevent accident. Kohlberg's level of morality illustrated by this example is pre-conventional। तो pre-conventional तो नहीं होगा, concrete operational, conventional and post-conventional। तो ये concrete operational हो सकता है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिकली थोड़ी सी हो जाती है। हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का स्टेज हम पहुंच चुके होते हैं, तो ये सूटेबल लग रहा है मुझे। तो ये इसके लिए हम लोग इसको आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, आपको बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन पूछा है, वो हमारा हम देखेंगे उसका क्या है क्वेश्चंस का। हम लोग को वो फार्मूला के बेस में हम लोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सुधा इज़ अ 10-year-old गर्ल विथ मेंटल एज ऑफ 12 अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट सुधास इंटेलिजेंस कोशेंट इज। तो
तो उन्होंने आई क्यू पूछा है, तो आप देखिए उसमें अपने आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपन एम ए अपन क्या बोलते हैं उसको, सी ए इंटू 100 बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो आप लोग अगर इसको देख के जो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आंसर जो 120 आ जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर आ जाएगा और जो नीचे जो है 12 आ जाएगा, इंटू 100 आप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस रहा। तो आप होपफुली मैं समझता हूँ ये सारे जो आंसर है आपको हम लोग 5-6 क्वेश्चंस या दिन में 10 क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे तो आपको मदद मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशंस अच्छा हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसका जो सुन लिया है। तो हम लोग आगे का वीडियो का वेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।